Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study the chapter Structure of Atom. It's a very interesting chapter from chemistry portion of class 9th. So let's begin with our chapter. In the chapter Atoms and Molecules, we have seen that Dalton told that atoms are indivisible. But क्या atoms सच में indivisible है? Questions were raised on that based on some daily findings. For example, आप सबने observe किया होगा that sometimes when the girls comb their hair, then the comb and the hair are getting attracted. The hairs are being pulled towards the comb. एक और चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, स्पेशली विंटर सीजन में. Sometimes it happens that you are sitting on a chair, your coat or blazer getting rubbed with each other, and आप में कुछ charges develop हो जाते हैं. एंड जब आप किसी और पर्सन को टच करते हो या किसी मेटल के पीस को टच करते हो तो आपको एकदम से करंट लगता है. यू जस्ट फील अ स्लाइट शॉक फॉर योर सेल्फ. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सम चार्जेस. और इन सब फाइंडिंग से साइंटिस्ट को लगा कि कुछ तो है, दैट एटम इज नॉट इनडिविजिबल. द एटम्स आर हैविंग सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑल्सो. और सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट वाज बाय जे थॉमसन, एंड दैट वाज एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ टाइम बाद प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, and the neutrons were later on discovered by Chadwick, James Chadwick. तो अब इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं, and then we'll study how we came to know about the structure of atom. So first let's find out an easy way to remember who discovered these subatomic particles. Electrons, protons and neutrons. These are the subatomic particles that are present inside an atom. इन्हें हम कहते हैं subatomic particles. और इन्हें किसने डिस्कवर किया, इसको याद करने के लिए we have an easy trick to remember. You can remember by go party means Goldstein discovered the protons. Eat means electrons were discovered by Thomson. And Nach, that is neutrons were discovered by Chadwick. So let's discuss about all these subatomic particles in detail. E. Goldstein discovered the protons. But how these protons were discovered? इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. So E. Goldstein used a glass discharge tube. एंड इस ट्यूब के अंदर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कैथोड एंड एनोड को एक हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करा गया. एंड इसके अंदर वैक्यूम पंप की हेल्प से बहुत लो प्रेशर क्रिएट करा. एंड अ गैस वाज फिल्ड इनसाइड दिस ट्यूब. तो इसके अंदर एक गैस फिल करी गई. उस गैस को बहुत लो प्रेशर पे रखने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक वैक्यूम पंप यूज किया गया. एंड उस गैस को बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करी गई. जब ये हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करी गई, इट वाज ऑब्जर्व्ड कि ये जो कैथोड था, दैट वाज अ परफोरेटेड कैथोड. उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स थे. एंड इट वाज ऑब्जर्व कि कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे. जैसे पानी की का कैनाल बहता है, कैनाल इज अ सोर्स ऑफ वाटर, तो जैसे कैनाल में पानी बहता है, इस तरह के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैथोड की तरफ मूव होते हुए दिखाई दिए. and these subatomic particles were moving towards cathode. That shows ये positively charged particles हैं. और इन्हें ही नाम दिया गया कैनाल रेज. इन्हें कैनाल रेज इसलिए कहा गया क्योंकि एक it was looking like a canal. Canal is a stream of water. So it was looking as if it's a stream of water passing through those perforated cathode, and it was named as canal rays. तो ये canal rays क्या होती हैं? That is asked as a question also in your NCERT book. Canal rays are the positively charged particles that were discovered by E. Goldstein during the glass discharge tube experiment. Okay, that is only what's given in NCERT. But I would like to tell you something extra. क्योंकि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी से पहले हुए थे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी. तो वो कैसे हुई थी, दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बट आई वुड लव टू टेल यू दैट. प्रोटॉन से पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने के लिए ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब यूज करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम. जब उन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल करी. एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड एंड दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल कैथोड प्लेस किया गया. बट उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो उन्हें दिखा कि पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. अगर वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
that shows that these particles are negatively charged. And that is how he came to know about these negatively charged particles and called them as electrons. And जो ये रेज निकल रही थी and it seems कि ये कैथोड से आ रही हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज. And that led to the discovery of electrons. जे थॉमसन ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता चला, बट बाद में गोल्डस्टीन ने सोचा दैट अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए दैट इज टुवर्ड्स द एनोड, तो फिर हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यों नहीं मिले? अगर इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे. और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पता करने के लिए ही ई गोल्डस्टीन ने इस कैथोड के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स किए, दैट इज परफोरेटेड कैथोड यूज किया. परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद वाला. तो परफोरेटेड कैथोड जब यूज किया गया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि हेवी होते हैं, जिनके पास मास होता है, वो पहले बिना परफोरेटेड कैथोड से निकल नहीं पाए थे. एंड सो हमें उनके बारे में पता नहीं चला था. और उनको पता करने के लिए ई गोल्डस्टीन ने जब परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो हमें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी कैथोड से पास होते हुए वी फाउंड दैट. And we came to know about these positively charged particles that are now known as protons. And that is how electrons को discover किया glass discharge tube use करके जे थॉमसन ने, and same experiment वापस करके perforated cathode use करके we came to know about protons, and that was done by E. Goldstein. Isn't that interesting? But neutrons अभी तक discover नहीं हुए थे. Neutrons were discovered much later by James Chadwick. So now let's see about the structure of atom as explained by various scientists. Structure of atom सबसे पहले बताया था जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने प्रपोज किया जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, also known as plum pudding model. जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम का जो मॉडल होता है दैट इज जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग और द क्रिसमस पुडिंग, बट इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ वाटरमेलन. वाटरमेलन में जो पल्प पार्ट, रेड पार्ट होता है, दैट इज जस्ट लाइक द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स. तो थॉमसन ने बताया जो प्रोटॉन्स हैं एक एटम में दैट आर स्प्रेड इवनली इन द होल एटम, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन, बीच बीच में एम्बेडेड हैं, दैट आर देयर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो अकॉर्डिंग टू हिम प्रोटॉन्स जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, दैट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इन एन एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन दोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. बट दैट मॉडल ऑफ थॉमसन वाज लेटर ऑन प्रूव टू बी रॉन्ग. देखते हैं उसे कैसे रॉन्ग प्रूव किया गया, बट पहले देख लेते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल. According to Thomson's model, the protons were evenly distributed in atom and the electrons were embedded in it, and every atom was electrically neutral. That is, it had the same positive charge and same amount of negative charge. जितने electrons थे उतने ही protons भी थे एक atom में, और इसलिए एक atom होता है electrically neutral. And this point we know that still it is true for every neutral atom. लेटर ऑन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा जिससे थॉमसन का मॉडल प्रूव हो गया दैट इट वाज नॉट करेक्ट. रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल एंड ही कैरिड आउट एन अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, एंड व्हाई ही सिलेक्टेड गोल्ड? बिकॉज गोल्ड इज अ हाईली मेलिएबल मेटल. गोल्ड को एक बहुत पतली शीट में आप टर्न कर सकते हो. इट इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल ऑफ ऑल, एंड जो उन्होंने शीट ली दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम्स थिक. इतनी पतली शीट उन्होंने गोल्ड की बना ली. देन Rutherford bombarded this gold foil with doubly charged helium ions which are known as alpha particles. तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम आयंस. मींस हीलियम में होते हैं, न्यूट्रल हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर उसको हाई एनर्जी सप्लाई करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज हैविंग द हीलियम आयन दैट इज हैविंग जस्ट 2 प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, these only are known as alpha particles. These alpha particles have a great mass and a positive 2 charge, 2 plus charges there. Now he bombarded these alpha particles and gold foil. इसके पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्ट्रिप प्लेस करी, एंड ये एक फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है. जब भी इस पे कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है सो इट ब्राइटन्स अप एंड दैट गिव्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पर पार्टिकल्स टकराए हैं. तो उन्होंने ये अरेंजमेंट क्रिएट करा ताकि उन्हें ये अल्फा पार्टिकल्स किस तरह से पास हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद, गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद किस तरह से इनका पैटर्न है मूवमेंट का, वो पता कर सकें.
and he found out the following observations, and together with the observations only we are going to discuss with the conclusions also. So it's very important for your exams to remember about the observations and conclusions of Rutherford's experiment. Rutherford's experiment is one of the most frequently asked questions in your exam, so I hope you all will pay good attention to remember this Rutherford's experiment. So let's see. रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वुड बी गेटिंग डिफ्लेक्टेड हियर एंड देयर, बट व्हाट ही फाउंड वाज रियली सरप्राइजिंग. देखते हैं कि करके ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड. Rutherford first observed that most of the alpha particles went straight forward without any deflection. कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल्ड फॉइल से पास हो गए, जिससे ये कंक्लूड किया गया कि ज्यादातर स्पेस गोल्ड फॉइल के अंदर एम्प्टी है, ज्यादातर स्पेस खाली है और जिस खाली स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो गए. Then he observed that some of the alpha particles were deflected by small or large angles. कुछ alpha particles कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. Why they got deflected by some angles? क्योंकि वो प्रोटॉन के आसपास से जो गुजरे that got deflected. So जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स के नियर बाय से पास हुए that were getting deflected. जो जितना प्रोटॉन्स के पास से गुजरेगा उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा. But the third point was only 1 out of every 12,000 alpha particles got rebound by 180 degree, and that was the most surprising thing. That shows, that was concluded कि जो total mass और positive charge होता है किसी भी atom का, that is concentrated in a very small area. Most of the space in an atom is empty, and जितना भी mass और जितना भी positive charge है किसी atom का, that is concentrated in a very small area in the nucleus. तो एटम के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और उस छोटे से न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड था, जिससे रिबाउंड करने के बाद, जिससे टकराने के बाद द अल्फा पार्टिकल्स गॉट रिबाउंडेड बाय 180 डिग्री. इट वाज एज सरप्राइजिंग एज आप किसी टिश्यू पेपर पे गन फायर करो और वो बुलेट वापस लौट कर आपके पास आ जाए इस टिश्यू पेपर से टकरा के. सो इट वाज दैट मच सरप्राइजिंग फॉर रदरफोर्ड. और रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, दैट वाज नॉट करेक्ट. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट रदरफोर्ड खुद जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे. सो द स्टूडेंट प्रूव दैट द टीचर वाज नॉट करेक्ट एट दिस पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बट देन what was the model given by Rutherford? Let's see to it. So Rutherford told that most of the space in an atom was empty, and the electrons revolve around the protons in some orbits, and the positive charge of the atom that was concentrated in the center of the atom in the nucleus. So all the positive charge, सारा का सारा mass एक atom का, that was concentrated at the center of, and that was in a very small space. That were the postulates given by Rutherford. अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम इन द न्यूक्लियस, दैट वाज ओनली द प्रोटॉन्स, बिकॉज रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में ही बताया था, तब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. एंड इफ यू आर आस्क्ड कि रदरफोर्ड ने अगर गोल्ड फॉइल के अलावा किसी और मेटल की फॉइल को लिया होता तो क्या रिजल्ट्स डिफरेंट होते, व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट्स, देन यू विल से दैट द रिजल्ट्स वुड हैव बीन द सेम. Just we need to take a very thin sheet. We can take any metal. हर मेटल के एटम्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए गोल्ड की जगह हमने कोई और मेटल लिया होता तब भी रिजल्ट सेम होते, बस हमें चाहिए थी एक बहुत पतली शीट. एंड दैट इज व्हाई Rutherford selected gold for making a very thin sheet, because gold is a highly malleable element. There were some drawbacks of Rutherford's experiment. अगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को सही माना जाए तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द प्रोटॉन्स, अराउंड द न्यूक्लियस. बट अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसमें एनर्जी कम हो जाएगी एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल इवेंचुअली फॉल इन द न्यूक्लियस ओनली. वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एटम स्टेबल नहीं होगा. अगर कोई भी एटम स्टेबल नहीं हुआ देन द एटम वुड नॉट एग्जिस्ट, और एटम नहीं एग्जिस्ट करेगा तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो दैट वुड प्रूव दैट नो मैटर वुड एग्जिस्ट, बट दैट इज नॉट सो. वी नो मैटर एग्जिस्ट करता है और एटम्स भी स्टेबल होते हैं.
तो फिर रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था, वो इस मॉडल में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ कम द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी. That drawback of Rutherford's experiment was later on cleared up by Niels Bohr model of an atom. So now let's see to the Niels Bohr's model of an atom. Niels Bohr ने बताया कि atoms जो protons के around revolve कर रहे हैं, they are not revolving anywhere around the nucleus, they are orbiting in some discrete orbits. वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी भी लूज नहीं करते, बिकॉज दीज ऑर्बिट्स हैव सम फिक्स्ड एनर्जी. जो एनर्जी है वो अलग अलग शेल्स की अलग अलग होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की जो एनर्जी लेवल है दैट वुड बी ऑल्सो डिफरेंट. बट नील बोर टोल्ड अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1913. अभी तक भी न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं थे, बिकॉज दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1932. तो नील बोर ने जब ये एटम का मॉडल बताया, स्टिल ही डिडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट द न्यूट्रॉन्स बिकॉज दैट वाज नॉट येट डिस्कवर्ड. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी 1932 में एंड दैट वाज डन बाय जेम्स चैडविक, जे चैडविक. James Chadwick, it's interesting again to know that James Chadwick was a student of Rutherford. तो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड एंड रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक. And James Chadwick ने ही हमें बताया था about the neutrons. And he told that neutrons have the same mass as that of protons. But neutrons के ऊपर charge होता है 0. तो neutrons के ऊपर charge 0 होता है and the mass of the neutrons is the same as that of protons. तो अगर हम protons के mass को 1 unit लेते हैं तो neutrons के mass को भी 1 unit consider करते हैं. Okay, so that is why the total mass of an atom is the sum of the mass of protons and neutrons. क्योंकि electrons तो बहुत light and weight होते हैं, they don't have any weight, they are almost having negligible weight. The mass of the electrons is almost negligible, and so the mass of an atom is taken as the sum of the mass of protons and neutrons. Now let's see to the distribution of electrons in an atom. तो एटम में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें होते हैं न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट वुड बी फिल्ड इन दीज शेल्स विद अ सर्टेन पैटर्न. इन शेल्स को हम नाम देते हैं के, एल, एम एंड एन. सो द फर्स्ट शेल इज नोन एज के शेल, सेकेंड एल, थर्ड एम and fourth is N. And likewise, K, L, M, N, O, P, Q, you can name the shells like that, starting with K. How many electrons could be maximum accommodated in these shells? That could be known by the rule 2n square. N मतलब number of shell. तो अगर first shell है तो n की value 1 होगी and the maximum number of electrons that could be possible in K shell, that is the first shell, is just 2, because 2 into n मतलब 1 का square, that is 1 only, so 2 into 1 is 2. So the K shell can have a maximum of 2 electrons. Now L shell की बात करें तो 2n square यूज करके you will find that n is 2, n का square 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, and so the L shell can have a maximum of 8 electrons. If we talk about M shell में n की value हो जाएगी 3, and so 2n square comes out to be 18. Similarly for N shell, n की value हो जाएगी 4, and so 2n square की value आएगी 32. And likewise, we can come to know the number of electrons that could be maximum accommodated in any shell. Now, the second rule is that जब भी आप electrons को fill करोगे in shells में, तो last shell में maximum 8 electrons ही fill हो सकते हैं. Last shell can never have more than 8 electrons. So that is known as octet rule. Octet rule is very very important and always followed in an atom. तो जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे दैट विल फॉलो ऑक्टेट रूल, दैट इज द लास्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम का स्ट्रक्चर देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. फर्स्ट शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 हो गए. अब बचे 10. थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स तक कैरी कर सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कैरी कर ही सकता है, बट नहीं, द लास्ट शेल कैन नेवर हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. और इसलिए कैल्शियम में 2, 8, then the third shell can have maximum of 8 electrons only, और बचे हुए 2 electrons that would be moved to the fourth shell.
तो थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बन जाता लास्ट शेल, एंड द लास्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड ऑन टू द फोर्थ शेल। ओके, you should be aware about this electronic configuration up to the atomic number 20, मतलब कैल्शियम तक का आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब KLMN शेल में किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करोगे, दैट फिलिंग यू शुड बी एबल टू नो, you should be able to work out up to calcium, okay, up to atomic number 20. That much is sufficient for 9th standard students. The next rule to fill the electrons in the shells is that the electrons would be filled in the next shell only after filling the previous shell. हम पहले शेल को पहले भरेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट शेल में मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के पास में 4, 3 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट्स नॉट दैट कि पहले शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में रख दिए। ऐसा नहीं होता। पहले हम फर्स्ट शेल को कंप्लीट करेंगे विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन ओनली वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेल। बट ऑक्टेट रूल इज प्राइमरी। कई बार ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए हमें थर्ड रूल को स्किप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन कैल्शियम ओनली, कैल्शियम में थर्ड शेल फिल करे बिना ही हम फोर्थ शेल पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर गए। वाई? क्योंकि थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है। तो octet rule has to be followed in every situation. The last shell can never have more than 8 electrons. Okay, that is how we fill the electrons in the shells. Now, based on these rules only, let's work out the electronic configuration of some of the elements. This atomic structure is also known as electron dot structure of these elements. So if we take about hydrogen, hydrogen has a nucleus that has just a proton in it, and it has just one shell. Only K shell is present in case of hydrogen, because hydrogen atomic number is 1. So it will be just having 1 electron in its outermost shell. Okay, so only K shell will be there, and that will be having 1 electron in it. Next, let's talk about carbon. Carbon has atomic number 6. So carbon has the atomic number 6. So it will be having 2 electrons in the first shell and 4 electrons in the second shell. That makes a total of 6. It will be having a nucleus that will be having the protons and neutrons. Then it will be having first shell that is having 2 electrons, and the second shell will be having 4 electrons. So we have to draw the second shell, and that is having 1, 2, 3 and 4 electrons. Okay, so that is the atomic structure of carbon. If I talk about sodium, sodium has the atomic number 11. Its electronic configuration would be 2, 8, 1. 2, 8 and 1. So it makes a total of 11. So it's very easy. Centrally placed nucleus that is having 11 protons and the neutrons. 12 neutrons are there. And the first shell is having 2 electrons. Second shell will be having 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, 8 electrons, and the third shell would be having 1 electron. You might be asked in your exams to draw this electronic configuration or atomic structure. So when you are drawing it in your exam, use a compass and draw these structures. So you draw it very well. Okay, draw neat and clean diagrams. Next, if we talk about magnesium, magnesium has atomic number 12. So the electronic configuration would be 2 electrons in the first shell, 8 electrons in the second shell, and again 2 electrons in the third shell. So if you draw the nucleus at the center, first shell will be having 2 electrons, second shell having 8 electrons, 7 and this is 8, and the last shell, that is the M shell, that will be having 2 electrons. Okay, so this would be the structure of magnesium. Now let's talk about aluminium. So aluminium has atomic number 13. Electronic configuration will be 2, 8, 3, and it would be having a nucleus, then 2 electrons in the inner shell, 8 electrons in the second shell, 8 electrons in the second shell, and the last shell would be having 3 electrons. So this would be the structure of
aluminium. Now let's next talk about oxygen. Okay, so oxygen has atomic number 8. Its electronic configuration would be 2 and 6. Now it would be having a centrally placed nucleus, 2 electrons in the first shell, and then 6 electrons in the outer shell. So the second shell would not be having now 8 electrons, it would be having 6 electrons only, because 6 electrons are there in the second shell. So it makes a total of 8 electrons. Okay, so this is the electronic configuration or the atomic structure of some of the elements. Okay, on the basis of this structure, we can also find out the valency of an element. So we have discussed about the valency topic in the chapter atoms and molecules also. थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब पढ़ा था तब भी हमने वैलेंसी के बारे में बात करा था और वैलेंसी के बेसिस पे ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे, बट एट दैट टाइम वी डिडंट नो द रीजन ऑफ द वैलेंसी. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के बाद हमें वैलेंसी का रीजन भी समझ में आ जाएगा. तो वैलेंसी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि K शेल कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड K शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले ले या किसी के साथ शेयर कर ले या इस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दे. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के इक्वल, दैट इज 1. हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद वन अदर एटम, तो इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1 और इसलिए इसकी वैलेंसी भी है 1. अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, शेयरिंग करता है, और जब वो शेयर करेगा तो इसके पास भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कार्बन की वैलेंसी भी होगी 4. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट सोडियम. यू कैन सी सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को भी भगाने की कोशिश करेगा. ये बोलेगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से. सो इट विल रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. इट विल डोनेट दिस आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू सम अदर एलिमेंट लाइक क्लोरीन, और इसलिए इसकी वैलेंसी भी होगी 1. ओके, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा और फिर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na+ आयन बनेगा. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन और ले नहीं सकता, तो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा. सो इट विल ट्राई टू रिमूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सो दैट इट वुड बी हैविंग द कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज लास्ट शेल में अब बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाई मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2. सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम ऑल्सो, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी भी है 3 क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा. ओके, नाउ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और लेने की कोशिश करेगा क्योंकि 6 को रिमूव नहीं कर सकता. सो इट विल ट्राई टू गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए ऑक्सीजन तो एलिमेंट्स के साथ में या तो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या शेयर कर सकता है, and so the valency of oxygen is 2 because it can gain 2 electrons. Gain करने की कोशिश करेगा and that is why its valency is 2. So what's valency? The number of electrons that could be either gained, lost or shared by an element is known as its valency. So the valency of oxygen is 2 because it can gain 2 electrons or share 2 electrons. अगर कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाएगा. अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है डिपेंडिंग कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, लेट्स प्रैक्टिस वन मोर एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2, 8 and 7. So it is having 2 electrons in the first shell, 8 electrons in the second shell and 7 electrons in the third shell. आपसे NCERT बुक में एक क्वेश्चन गिवन है कि क्लोराइड आयन, that is Cl-,
में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो क्लोराइड आयंस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? द आंसर इज 8. द आंसर इज 8. क्यों क्लोराइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. तो अगर मैं क्लोरीन एटम में पूछूं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इट इज 7. बट क्लोराइड आयन मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तभी वो आयन बना है. और क्लोराइड आयन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ऑलरेडी 7 थे, एक और गेन कर लिया, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8. So the answer is 8. The chloride ion will be having 8 electrons in the outermost shell and that is the number of valence electrons in it. So अगर आपसे पूछा जाता है what is number of valence electron in an atom, तो उसके outermost shell में जितने भी electrons हैं that would be known as its number of valence electrons. ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट इज 6, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट ऑक्साइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट वुड बी अगेन 8. ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करूं मैं तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल. तो ऑक्सीजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज 6. बट अगर ऑक्साइड आयन बोलूं तो जब ऑक्सीजन का आयन बनता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर चुका है और इसलिए आउटरमोस्ट शेल वुड बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द valency of all the atoms. So we have seen about the atomic structure as well as valency. This arrangement of electrons in various shells was explained by Bohr and Bury. Now let's talk about atomic number and atomic mass and how we represent an element. So let's see to it. Atomic number of an element is the number of protons present in any element. तो जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट. आप बोलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम इज इक्वल. सो व्हाई वी से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुड बी गेन्ड और लॉस्ट. तो जब एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होती है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टिल रिमेन्स द सेम ओनली. So it's a constant value for a particular atom and that is why atomic number is the number of protons present in any element. And अगर हम उसके representation की बात करें कि atomic number को हम represent कैसे करेंगे, so for example if I talk about oxygen and if I have to write its atomic number, so it's written as this way. So उसके base पे start में and base पे उसका लिखा जाता है उसका atomic number. Atomic number को represent करा जाता है Z से. तो अगर कोई element है, so if we just represent any element by the symbol X, then we represent its atomic number by the symbol Z. So Z is a symbol used for atomic number and atomic number is equal to number of protons present in any element. Now if I talk about atomic mass को represent करा जाता है alphabet A से और उसे लिखा जाता है किसी भी element के top पर. For example, oxygen की बात करूं तो atomic mass of oxygen is 16 and this is written here. So what is atomic mass? Atomic mass is the total mass of the protons plus neutrons of an atom. That will give you the atomic mass. Atomic mass calculate करने के लिए हम बस total number of protons plus neutrons को add up कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट कंसिडर करा जाता है. Similarly, 1 न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट लिया जाता है and therefore अगर किसी एटम में 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका टोटल मास हो जाएगा 4 यूनिट. ओके, so that is the mass, atomic mass of an element, that is the number of protons plus neutrons. मास कंसिडर करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. So mass of protons plus mass of neutrons will give you the atomic mass and that is represented by A and written at the top of any element. Okay, so that is about atomic number represented by Z. That is equal to number of protons, and atomic mass, that is the sum of protons and neutrons, that is represented at the top. Now let's talk about another topic that is very interesting, that is isotopes. Dalton's atomic theory में Dalton ने बताया था कि कोई भी एक particular atom है तो आप उसका कोई भी sample लोगे तो उसका atomic mass और उसकी chemical properties same होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, दैट इज ट्रू, बट डेल्टन का ये पोस्टुलेट बाद में गलत प्रूव हो गया व्हेन वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन की 3 अलग एटॉमिक स्पीसीज अकर करती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो कॉमनली अकर करता है हम लिखते हैं दैट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज ऑल्सो 1. So we write hydrogen like this, mass is 1 and atomic number is also 1. But two other possible hydrogen atoms are also there in nature and that are having different masses. For example, hydrogen का mass 2 भी हो सकता है, atomic number तो same है, but mass is 2 और it could be 3 also. हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक स्पीशीज अकर करते हैं नेचर में जिनका मास 1, 2 या 3 पॉसिबल है. 1 मास वाले को protium कहते हैं and it is represented by this symbol only. The species of hydrogen that is having a mass of 2 that is also known as deuterium and it's represented by D also. So it is also represented by the symbol D or like this. And the hydrogen atom that is having a mass of 3 that is represented by T that is tritium. That is also known as tritium. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पॉसिबल हैं और इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मींस दे विल ऑल बी हैविंग 1 प्रोटॉन एज वेल एज 1 इलेक्ट्रॉन, बट इनका मास नंबर डिफरेंट है क्योंकि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0. In case of deuterium, the number of neutrons is 1. So 1 proton plus 1 neutron will make the atomic mass to be 2. And in case of tritium, the number of neutrons is 2. So 2 neutrons and 1 proton makes a total mass of 3. तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट आइसोटोप मिलते हैं नेचर में एंड दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स आल्सो. बट डोंट वरी, दूसरे एटम्स के आइसोटोप्स के अलग अलग नाम नहीं याद करने हैं आपको, तो बस हाइड्रोजन के ही याद रखना है, प्रोटियम, deuterium and tritium. Isotopes are there for other elements also. For example, oxygen के भी 2 isotopes होते हैं, oxygen 16 and oxygen 18, having different atomic mass, 16 or 18. Similarly, carbon is given in your book as well, that carbon can have a mass of 12, atomic number is 6, and it can have a mass of 14 also, still atomic number is same. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं अगर आपको डिफाइन करना है, तो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज दे आर द सेम एलिमेंट बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. तो इनका मास डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट इन देम. Okay, similarly there are 2 isotopes of chlorine also, chlorine 35 and chlorine 37. Let's have a look. अगर आपने एटॉमिक मास की टेबल को देखा होगा तो आपने फील किया होगा कि क्लोरीन इज द ओनली एटम दैट इज हैविंग द मास इन डेसिमल्स. उसका मास 35.5 यू लिया जाता है. नाउ लेट्स सी व्हाई इट्स मास इज टेकन एज 35.5 यू. डेसिमल्स में क्यों है मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकते. आधा प्रोटॉन हो गया ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मास में ये 0.5 यूनिट क्यों है? लेट्स सी टू दैट. नेचर में जो हमें मिलता है क्लोरीन दैट इज हैविंग 75% ऑफ the chlorine that is having the mass of 35 and 25% chlorine जो नेचर में अकर करता है that is having a mass of 37. और इसलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करा जाता है. एवरेज एटॉमिक मास अगर आप कैलकुलेट करते हो क्लोरीन का, so you have 75% of the mass having 35 plus you have to add 25% of the atomic mass 37. So we calculate that 75 into 35 upon 100 plus 25 into 37 upon 100 and that will give you out it's 25 3 times is 75, 25 4 times is 100. Here 25 1 times is 25, 25 4 times is 100. So 35 into 3 will make it 105 plus 37 and the LCM is the same, that is 4. Now if we solve it out, it comes out to be 142 upon 4. 4 3 times is 12. 4 5s are 20 and 0.5 will give you. So it comes out to be 35.5. So that is the mass of chlorine that we consider. So that is the reason why chlorine has an atomic mass of 35.5. अगर अब तक ये सोच रहे थे कि chlorine का mass 35.5 क्यों है, तो this is the reason. Okay, this could be asked in your exams also to find out the mass of chlorine. Okay, so this is how you have to show it. Isotopes of some of the elements are also very useful. For example, one of the isotopes of iodine is used for the treatment of goiter. I hope you remember कि goiter होता है iodine की deficiency से.
तो आयोडीन का ही एक आइसोटोप यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्वाइटर, एंड लार्ज ग्लैंड को वापस कम करने के लिए भी आयोडीन को यूज किया जाता है एज अ आइसोटोप। सिमिलरली कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है, एंड यूरेनियम का आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, उसमें यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज किया जाता है जो बहुत एनर्जी रिलीज करता है। So that is all about the applications of isotopes. That is the uses of isotopes. Now let's discuss about isobars. Isobars वो elements होते हैं जिनका atomic mass same होता है, but they are two different elements and that is why their atomic number is different. तो atomic number different है, but atomic mass same है. That's just a coincidence कि दो अलग अलग elements का mass same है. Okay. So for example, argon is having atomic number 18 और उसका मास होता है 40. Similarly, calcium that is also having atomic number 18 और उसका भी मास होता है 40. तो these two are the isobars. तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इसलिए उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, बट उनका कोइंसिडेंस है कि दोनों का मास सेम है, दैट इज बोथ हैव अ मास ऑफ 40 ओनली. Okay, this is the only example given in your book, but there are some other isobars as well. For example, nickel and cobalt, they have different atomic numbers, but they also have the same atomic mass. तो वो दोनों भी isobars हैं. So by that we have completed our chapter structure of atom, and this was a one short video for the chapter. I hope you are able to understand the concepts. If you do like the videos, do share it with your friends as well. That's all for today. Keep studying well and score well. Take care of yourselves. Good day, everyone.